Today we discuss the next article or next topic, linear inequalities. Linear inequalities. आपने इक्वेशन पढ़ी इससे पहले, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स. Some more problems translating them in one form of equation, but it is not always possible to translate a one-word problem to form an equation. Therefore, we study here the sign of inequality. Sign of inequality. Sign of inequality. Sign of inequality में मेरे पास होगा less than, greater than. That is, this is less than, this symbol, this is greater than. ये इनइक्वलिटीज मेरे पास यूज होंगी. इसको कहूँगा मैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और equal to, and this is greater than or equal to. ये inequalities मैं यूज करूंगा. They are known as inequation or inequalities. They are known as inequations or inequalities. They are known as inequation or inequalities. Right? Therefore, we study here linear inequation in one and two variables. Then linear equation in one variable. Linear inequation, linear inequation in single variable, one variable. वन और टू वेरिएबल में डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल. स्टेटमेंट बिटवीन, statement between two expressions, statement between two expressions involving a single variable, a single variable, और single variable x लेके चला with highest power 1, with highest power 1, between two expression involving a single variable x होगा जिसकी highest power 1 होगी, and the sign of inequality, the sign of inequality, that is greater than, less than, greater than equal to, or less than equal to. This is called linear equation in one variable. For example, 2x plus 3 is less than 7. This is an inequation single variable. 3x plus 5 is this. This is linear equation single variable. X upon 2 greater than equal to 2. And number 4, 3x minus 5 is greater than 9. और अगर मैं जनरल बात करूं, in case of general form, in case of general form, then ax plus b
is greater than C, ax plus b single variable is less than C, ax plus b is greater than equal to C, and ax plus b is less than equal to C. A, B, C are real numbers. A, B and C are real numbers, and A is not equal to 0. This is linear equation in one variable. हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल की 1 होगी और आपके पास कोई भी रियल नंबर होगा कनेक्टिंग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. इस तरह से आपके पास इन इक्वेशंस कहलाएंगी एंड दे आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्लैक इनइक्वलिटीज. दे आर कॉल्ड स्लैक इनइक्वलिटीज. देन नेचुरल नंबर रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा आपके पास. देन नेक्स्ट रिजल्ट आता है जनरल रूल. जनरल रूल्स फॉर सॉल्विंग linear inequations in one variable. जनरल रूलिंग है. आप थोड़ा सा ध्यान दें रूलिंग के अकॉर्डिंग. फर्स्ट केस, द साइन ऑफ इनइक्वेशन, the sign of inequations remains the same on adding the same number, adding the same number or expression to each of its sides. पहला रिजल्ट है. इन इक्वेशन गिवन होगी आपको. एक साइड आपके पास इन इक्वेशन के लेफ्ट होगी, एक राइट होगी. कहने का मतलब यह है कि इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा व्हेन वी एडिंग द सेम नंबर और सेम एक्सप्रेशन टू बोथ साइड्स. The sign of inequation does not change. First rule. Second, the sign of inequations remains the same on subtracting the same number or expression to each of its sides. साइन ऑफ इनइक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. इनइक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर दो आपके पास पार्ट होंगे. तो हमने कहा ऑन सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर और सेम एक्सप्रेशन टू बोथ साइड्स द साइन ऑफ इनइक्वेशन डज नॉट चेंज. एडिंग पे भी चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्टिंग पे भी चेंज नहीं होगा. थर्ड रिजल्ट, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ inequality does not change when both sides of the inequality are multiplied
और डिवाइड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड दोनों साथ लिख दिया मैंने, बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, बाय द सेम पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या लिखा हमने? पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ या पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करें दोनों तरफ, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव वर्ड बोल रहा हूं मैं, बोथ साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द पॉजिटिव फैक्टर और पॉजिटिव एक्सप्रेशन और पॉजिटिव क्वांटिटी टू बोथ साइड्स, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो 3 स्टेप हमने बताए जनरल सॉल्यूशन के लिए, जनरल रूल्स के लिए, कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को कैसे सोल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें या पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करें, द साइन ऑफ इनइक्वेशन डज नॉट चेंज। ये 3 बातें लिखी हमने। देन नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। इफ P कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन P कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, इनिक्वेशन है A इज लेस देन B, दोनों तरफ पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनिक्वेशन के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई किया ये, और A अपॉन P पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड किया, इनिक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रिजल्ट था आपके पास। एंड सेम कंडीशन है, A बड़ा है B से, इज ग्रेटर देन B, देन दिस इंप्लाइज AP ग्रेटर देन BP। P पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करते हैं तो A अपॉन P इज ग्रेटर देन B अपॉन P। इन इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ग्रेटर था, यहाँ भी ग्रेटर रहा मल्टीप्लाई करने पे और डिवाइड करने पे भी ग्रेटर रहा। तो ये एक जनरल एग्जांपल बताया उसने कि अगर ऐसा होगा तो हम सॉल्व कर देंगे वहां से। देन नंबर 4 4 नंबर है मेरे पास, नंबर 4, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स और चेंज, रिवर्स और चेंज when both sides of the inequality, both sides of the inequality are multiplied or divide, multiply or divide by the same negative quantity, same negative quantity, राइट। अगर इन इक्वेशन के दोनों तरफ नेगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं आप या नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये नंबर 4 में इक्वेशन में हमने बताया। फॉर एग्जाम्पल, P कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव है ये, P इज लेस देन 0, नेगेटिव रियल नंबर है, देन A इज लेस देन B, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो गया, रिवर्स हो गया साइन, लेस से ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया। एंड नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो आप, A अपॉन P रिवर्स हो गया B अपॉन P, बिकॉज P इज नेगेटिव। ऑल्सो A इज ग्रेटर देन B, दिस एम्प्लाइज नेगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो आप, A अपॉन P इज लेस देन B अपॉन P, यहाँ P हम नेगेटिव लेके चले हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ये रूलिंग आप सभी को याद रखनी है। 4 स्टेप बताए हमने लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्यूशन के लिए। अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर दोनों तरफ ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ दोनों तरफ
या मैं पॉजिटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं या मैं पॉजिटिव फैक्टर से डिवाइड करता हूं, इस केस के अंदर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द नेगेटिव फैक्टर टू बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज, देन द साइन ऑफ द इक्वेशन बी रिवर्स. राइट, ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है. सेम पॉजिटिव नंबर ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा. देन इंटरवल्स, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा आपने, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल्स. यहां भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं. लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, आर एनी टू रियल नंबर्स. A and B are two real numbers and let A is less than B. Then A is less than B. Then first, the set of all real numbers satisfying all real numbers X satisfying X is less than equal to B greater than equal to A is called closed interval, and written as closed interval AB, including both A and B, and also include the values between A and B. एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे और इनके बीच की वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे. ये क्लोज इंटरवल का मतलब है आपके पास. सेकंड, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स X satisfying X is less than B greater than A is called open interval, and written as AB. Exclude A as well as B. We include the values lies between A and B. ओपन इंटरवल का मतलब ये होगा आपके पास, ओपन इंटरवल, रिटन एज ओपन इंटरवल. ये सारा जो हमने सेट शुरू में बताया था, फिर भी एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, आइडिया आ जाएगा आपके पास. द नेक्स्ट इज द सेट ऑफ all real numbers satisfying X is less than B greater than equal to A, and written as including A excluding B. स्ट्रिक्टली का जो साइन है वो एक्सक्लूड होगा और इक्वलिटी का साइन है वह इंक्लूड होगा. फ्रॉम A to B is an open interval, semi-open interval is an open interval from A to B including A but excluding B. इसका मतलब है including A excluding B. इसको कहते हैं हम सेमी क्लोज्ड इंटरवल, राइट. ऑल्सो सेट X is less than equal to B greater than equal to A, then this is written as A B include, and this is called excluding A include B.
and this is called semi open interval. This is called semi closed interval. This is called semi open interval. Number 4, the set of all real numbers, set of all real numbers x satisfying x is less than a and x is greater than a. ओपन इंटरवल पे बात चल रही है. they are written as x is less than a minus infinity to a exclude and x is greater than a to infinity respectively. x is less than a और slightly less than a और strictly less than a, तो माइनस इन्फिनिटी टू ए होगा, और x is strictly greater than a to infinity होगा आपके पास पॉजिटिव. नंबर 5, the set of all real numbers x satisfying x is less than equal to a and x is greater than equal to a are written as minus infinity to a include and a to infinity respectively. यहाँ पे पास x is less than equal to a है, तो माइनस इन्फिनिटी टू a होगा आपके पास, और x is greater than equal to a to infinity होगा. ये सारे इंटरवल्स की कंडीशंस मैंने सेट थ्योरी के अंदर फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस की थी. आप लोगों एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास. यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशंस इन इक्वेशन के अंदर रिजल्ट्स हम फॉलो करेंगे. डन. कुछ टिप्स की बातें हैं, ये आपको याद रखें, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. इफ फर्स्ट केस है x माइनस ए x minus b, a is less than b, then x lies between a and b, that is x is less than b greater than a. डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं. सेकंड होगा आपके पास इफ x माइनस ए x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, a इज लेस देन b, देन x इज लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू a. ये रिजल्ट्स आप नोट रखें, डायरेक्ट आप यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर. इफ x माइनस ए लीनियर फैक्टर x माइनस बी लीनियर फैक्टर इज पॉजिटिव एंड a इज लेस देन b, देन x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन b. x a से छोटा होगा, x b से बड़ा होगा. एंड इफ x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a लेस देन b है आपके पास, देन x इज लेस देन इक्वल टू a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b. ये रिजल्ट्स आप लीनियर फैक्टर के साथ डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं. यहां से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. देन वी डिस्कस द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लीनियर इनइक्वालिटीज. देन एग्जांपल नंबर फर्स्ट, solve the following linear inequation. Solve the following
linear inequations for real number x. First is 2 of 2x plus 3 minus 10 less than 6 of x minus 2, solve for x, and 37 minus 3x plus 5 greater than equal to 9x minus 8x minus 3. Solve for x, right? इन इक्वेशन के टर्म्स में आंसर चाहिए आपको. देन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट के अंदर सॉल्यूशन है व्हाट इज गिवन 2 ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 ऑफ x प्लस 2. थोड़ा सा ध्यान दें, सबसे आसान टॉपिक है लेकिन 12th क्लास में इसका काफ़ी यूज होगा, तो बिल्कुल फोकस करके चले आप टॉपिक के ऊपर. 2 से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 6 माइनस 10 एंड दिस 6x प्लस 12. इन इक्वेशन के बाहर जो मल्टीपल था उसे मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ से मेरे पास आ गया 4x माइनस 4 इनइक्वलिटी है 6x प्लस 12, राइट. तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दे 12 टू बोथ साइड्स. 6x माइनस 12 है, दिस माइनस 12, दिस माइनस 2, दिस 6x माइनस 12. Add 12 to both sides. Add 12 to both sides. Add कर रहे हो दोनों तरफ इनइक्वेशन पे, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये 12 ऐड हो गया, ये 6x माइनस 12 और प्लस 12 जैसी इनइक्वलिटी वैसी लिखी हमने. इनइक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कोई भी टर्म आप दोनों तरफ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं. इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 4x प्लस 8 और यहां से आ गया मेरे पास 6x. दिस ये कैंसिल हो गया, राइट. 4x subtract 4x to both sides. Subtract 4x to both sides. Then 4x plus 8 minus 4x, 6x minus 4x. इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड करेंगे आप सेम नंबर या सब्ट्रैक्ट करेंगे या पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव फैक्टर से डिवाइड करें, इन इक्वेशन का साइन सेम रहता है, उस पर कोई चेंज नहीं होगा. तो यहाँ से मेरे पास आ गया 8, यहाँ से मेरे पास आ गया 2x. इसका मतलब मेरे पास हो गया 2x इज ग्रेटर देन 8. देन डिवाइड बोथ साइड्स बाई पॉजिटिव 2. तो मेरे पास आ गया x इज ग्रेटर देन 4. इन इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर से आप डिवाइड कर रहे हो. अब सॉल्यूशन सेट क्या बना आपके पास? सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास? सॉल्यूशन सेट होगा मेरे पास x such that x is greater than 4 for all x belongs to real value. For all x belongs to real value, that is x belongs to ओपन इंटरवल 4 to infinity. ये भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, ये आपकी मर्जी है. x की वैल्यू एक्सक्लूडिंग 4 to infinity होगा आपके पास. x इज ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 को छोड़ दें आप, 4 to infinity एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल आपके पास, तो ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा आपके पास, ये आंसर होगा. जो भी आप अप्लाई करते हैं इन इक्वेशन के अंदर वो नोट करते जाना है, डायरेक्ट कोई नहीं लिखे, सारे स्टेप फॉलो करें आप. सेकंड है इसका सॉल्यूशन. व्हाट इज गिवन है 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस 3. गिवन स्टेटमेंट के साथ साथ फॉलो करें. जो बेसिक रूलिंग है उसको फॉलो करते जाए आप. यहां से 37
ये माइनस का 3x, ये माइनस का 5, ये हो गया 9x माइनस 8x प्लस का 24, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, राइट। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया 37 और माइनस 5, 32 माइनस 3x, 9x माइनस 8x x प्लस 24। इन इक्वेशन के लेफ्ट और राइट के अंदर ये रिजल्ट आया मेरे पास, राइट। एड 3x टू बोथ साइड्स, एड 3x टू बोथ साइड्स। 3x आप ऐड करेंगे तो मेरे पास हो गया 32 माइनस 3x, ऐड कर दिया 3x, इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, x प्लस 24 प्लस 3x। जहाँ से आ गया 32 प्लस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया 4x प्लस 24, 4x प्लस 24। देन वी राइट हियर subtract 24 to both sides, subtract 24 to both sides। तो रिजल्ट हो गया 32 माइनस 24, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 4x प्लस 24 और माइनस 24, और यहां से मेरे पास आ गया 8, 32 माइनस 24, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 4x। इसका मतलब हो गया 4x इज दिस, 4x इज दिस, right? Then divide both sides by 4, then x is greater than equal to 2। तो सॉल्यूशन सेट आ गया मेरे पास, x such that x is greater than equal to 2 for all x belongs to R, और x belongs to 2 to infinity, इंक्लूड करेंगे आप 2 to infinity, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ मेरे पास आएगा x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू इंक्लूड, लेस देन इक्वल टू आपके पास। तो इन इक्वेशन के अंदर आपके पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2। इस तरह से मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, सोल्व द इनइक्वेशन और सोल्व द सॉल्यूशन सेट। Solve the following inequalities for real values of x. First is x by 4 less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5, x belongs to real value। And second result is two x minus 3 upon 4 plus 1 is less than x plus 4 by 3, x belongs to R। Solve the linear equation by single variable। देन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करें हम, क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज गिवन, द गिवन एक्सप्रेशन इज x upon 4 is less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5।
देन अपॉन की टर्म है तो एलसीएम ले लें आप। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 बी 60। एलसीएम 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे आप, 60 आएगा आपके पास। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 60, the LCM of 3, 4 and 5। इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया हमने कि 3, 4 और 5 जो डिनोमीटर में टर्म है आपके पास सिंगल वेरिएबल के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई हो गया x/4। इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से हो गया 60 और इसको लिख दिया 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। देन यहाँ से मेरे पास आ गया 15x, इनइक्वलिटी एज इट इज। ये हो गया मेरे पास 20 इंटू 5x - 2, यहाँ से हो गया 12, 7x - 3। ऐसा हम लिख सकते हैं, 3 to 20 हो गया, 5 to 12 हो गया। देन 15x इनइक्वलिटी 100x -40 -84x प्लस 36 माइनस माइनस। इनइक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड 15x है, राइट हैंड साइड 84x। लाइक टर्म कलेक्ट करें आप तो 16x हो गया, 100x - 84x और माइनस का 4, 16x - 4। Then subtract 16x to both sides. Subtract 16x to both sides. लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 15x ये सब्ट्रैक्ट हो गया, इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 16x - 4 और ये माइनस का 16x। यहाँ से सॉल्व होने के बाद लाइक वेरिएबल है, इसमें -4 आ गया। अब जनरली हम क्या करते हैं, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल सिर्फ उसी केस में होगा जब इक्वल टू का साइन होगा, इक्वेशन होगी, इन इक्वेशन में नहीं होगा। देन डिवाइड बोथ साइड्स बाई -1। नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। जब आप नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, जब आप नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड करें तो ऐसे लिखेंगे, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जब भी आप नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा और मेरे पास आ गया x > 4। देन देयरफॉर व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट? What is the solution set x such that x is greater than 4 for all x belongs to real value? या फिर मैं लिखूं x belongs to open interval 4 to infinity, 4 to infinity, x is greater than 4। इंटरवल्स के अंदर हमने कंडीशन बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आता जाएगा। इस तरह से हम सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास कंडीशंस बनती जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, इसी का सॉल्यूशन है। व्हाट इज गिवन पार्ट है मेरे पास 2x - 3/4 प्लस 1 इज लेस देन x + 4/3 x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। 2x - 3/4 + 1 इज लेस देन x + 4/3। राइट, लेफ्ट हैंड साइड से 4 एलसीएम लिया मैंने, मेरे पास आ गया 2x - 3 और +4, इनइक्वलिटी एज इट इज। यहाँ से 3 एलसीएम लिया तो मेरे पास हो गया 3x + 4। ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। देन टेक एलसीएम ऑफ 4 and 3, दैट इज 12। इसका एलसीएम होगा 12। देन मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स
बाई 12, पॉजिटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2x प्लस 1/4। इन इक्वेशन एज इट इज 12 3x प्लस 4/3, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 12। मेरे पास आ गया यहाँ से 3, 2x प्लस 1 लेस देन 4, 3x प्लस 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। देन 6x प्लस 3 इज लेस देन 12x प्लस 16, राइट। देन subtract 12x to both sides, subtract 12x to both sides, then 6x प्लस 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12x प्लस 16 माइनस 12x, यहाँ से आ गया मेरे पास 6x प्लस 3, इनइक्वलिटी एज इट इज 16, देन सब्ट्रैक्ट 3 to both sides, subtract 3 to both sides, then माइनस का 6x, इन इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 माइनस 16 माइनस 3, देन माइनस 6x इज लेस देन 13। अब यहाँ पे कंडीशन आई मेरे पास, नेगेटिव फैक्टर आ गया, देन डिवाइड बोथ साइड्स बाई -6, नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड कर दिया। जब आप नेगेटिव फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का 6x डिवाइड बाई -6, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा 13/-6, और यहाँ से मेरे पास आ गया x इज ग्रेटर देन -13/6। डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा आपके पास। जैसे आपके पास रिवर्स होगा तो अब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। therefore solution set x such that x is greater than -13/6 for all x belongs to real value, or that is x belongs to -13/6 to infinity, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा। इन इक्वेशन की ये कंडीशंस आप जरूर रीड करें और यहाँ तक एक बार पढ़ के देखें। फिर भी कोई डाउट आता है आपके पास, एक एक टॉपिक को पढ़ के देखें। 4 एग्जाम्पल मैंने सोल्व किए हैं, इसी टाइप के एग्जाम्पल एक्सरसाइज फर्स्ट से सोल्व करें आप 6.1 से। इन इक्वेशन का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले साल 12th में यूज होगा इंटरवल सबसेट ऑफ रियल्स के अंदर, इसलिए इस टॉपिक का जो कंसेप्ट है आप जरूर रीड करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डिस्कस कर लें।